Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss 100 marathon MCQs related to the educational acts, policies, and commissions. Definitely, this part would be useful for CTET, Central Teachers Eligibility Test, UGC, NET, Principal, Vice Principal exam, in KVS, NVS, CMRS, UPSC and other state board exams, state eligibility test for teachers in state boards. So definitely the session is interesting one, and I will explain all the MCQs with fact. So that please, my friends, subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Till the end, please listen the video. Uh, Next, follow my Facebook page. It is same as with Governmental Guru. If you follow my page, then systematically you can get video links. Also, join. It means if any queries there, you can contact with me. My WhatsApp number is 8327782034. So now I am going to discuss 100 marathon MCQs related to the educational acts, policies, and commissions. Question number 1, you see. Which of the following acts ensures free and compulsory education for children in India? Right to Education Act 2009, University Grants Commission Act 1956, National Education Policy 2020, D. Sarva Shiksha Abhiyan. So first one is Right to Education Act 2009. You know, it is free and compulsory education for 6 to 14-year child, right? So option A is the correct answer. Clear? Then you see the question number 2. The National Education Policy 2020 in India replaces which earlier policy? कौन सा पॉलिसी को अभी एनईपी 2020 ने रिप्लेस किया? इट इज ऑप्शन बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. National Policy on Education 1986. Then after that, NEP 2020 brought revolutionary change in our educational pattern, in learning outcomes, and for the holistic development of the child. So NEP 2020 replaced NPE 1986. Question number 3. Which commission recommended 10 plus 2 plus 3 education? Right? It is Radhakrishnan Commission, Mudaliar Commission, Kothari Commission, and National Knowledge Commission. Okay, so option C is the correct answer, Kothari Commission. You know this commission period actually 1964 to 66, right? So Daulat Singh Kothari, July 14, 1964, and at that time he was the chairman of UGC, right? So he emphasized 10 plus 2 plus 3 education structure. Okay, so option C is the correct answer. You know, now in 2000 NEP 2020 structure is 5 plus 3 plus 3 plus 4. Okay, foundational stage, preparatory stage, then next one middle school, then next one secondary. Okay, but 10 plus 2 plus 3 education structure actually recommended by the Kothari Commission. Option C is the correct answer. And also you know that Kothari Commission is called Education Commission of India, right? Education Commission of India. Okay, and period 1964 to 66. Okay, do not forget. So question number 4. The No Child Left Behind Act was introduced in which country? No Child Left Behind Act was introduced in which country? It is United States. Option C is the correct answer, right? Then you see question number 5. The University Grants Commission UGC was established under which act? Right? The University Grants Commission was established under which act? It is UGC Act 1956. You know one information, it means
You know, Radhakrishnan Commission 1948-49. Radhakrishnan Commission 1948-49 emphasized on UGC Act. It means recommend UGC Act, and UGC Act was made in 1956 according to the Radhakrishnan Commission. You know, Radhakrishnan Commission basically related to the higher education, reforms in higher education, right? Also, Radhakrishnan Commission is also called University Education Commission. Okay, 1948-49 recommend UGC Act 1956. Option B is the correct answer. Question number 6. The Radhakrishnan Commission 1948-49 period, you remember, was primarily concerned with reforms in which sector? अभी मैं बताया था एक्चुअली जो राधाकृष्णन कमीशन है वो हायर एजुकेशन. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. Radhakrishnan Commission is also called University Education Commission, and this commission actually recommended for UGC and reforms in higher education, emphasized on quality education, emphasized on research. Okay, emphasized on basically training for the teaching faculties and best resource for the students, those who basically pursue their career in higher education. So it is important one, Radhakrishnan Commission. Okay, emphasized on higher education. Period 1948 to 49. Also it is called University Education Commission. So next one, question number 7. What is the main goal of the Sustainable Development Goal 4, SDG 4? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SDG 4, right? Achieving universal health care, providing inclusive and quality education, promoting environmental sustainability, strengthening global trade policies. Okay, actually जो SDG 4 main goal, it is providing inclusive and quality education. Inclusive education. There is no separation of the slow learners from gifted students. There is no separation of disabled students from the normal child. All one sit together and learn. Okay, and also quality education. And you know, SDG, actually this goal 4, it can be achieved by 2030, right? So SDG 4 main goal is providing inclusive and quality education. It can be achieved by 2030. Okay, question is also coming. One question, another question. It is by 2030 it can be achieved, right? And also SDG 4 emphasize on lifelong learning opportunities for all. Lifelong learning opportunities for all, right? So option B is the correct answer, and it can be achieved by 2030. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर आ जाएंगे. द सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड टू अचीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? ओके, द सर्व शिक्षा अभियान SSA वाज लॉन्च्ड टू अचीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, एनहांसिंग हायर एजुकेशन रिसर्च, digitalization of education. Actually free and compulsory education for children aged 6 to 14. So actually जो SSA program officially launched in 2001, right? Previously, okay, before SSA it was called District Primary Education Program, DPEP, District Primary Education Program, year 1993-94, and Sarva Shiksha Abhiyan, it was actually legally, okay, it was legal one due to RT Act 2009. Okay, free education, you know, RT right to education, emphasized on free and compulsory education for children aged 6 to 14. So Sarva Shiksha Abhiyan, actually it was legal one. It means it is right for the children aged 6 to 14 to get free and compulsory education.
Sarva Shiksha Abhiyan actually emphasized on many things: school infrastructure, separate toilets for boys and girls, training for the teachers, vacant teaching and non-teaching vacant post must be filled, emphasized on lab, playground, okay, proper infrastructure so that in conducive atmosphere the childrens they can learn. But now ASSA, it is merged with Samagra Shiksha Abhiyan. Samagra Shiksha Abhiyan, now it is merged. You know, Samagra Shiksha Abhiyan, three basically schemes actually merged. One is the ASSA, okay, and another one Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, and another one teacher education. Three actually observed to Samagra Shiksha Abhiyan, right? Samagra Shiksha Abhiyan 2018. So three schemes: Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, teacher education. All the three actually merge with Samagra Shiksha Abhiyan. But actually, Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2001, and previously it was called DPEP, District Primary Education Program. So Sarva Shiksha Abhiyan emphasized on universal elementary education 6 to 14, right? Have we clearly understood or not? So it is option B is the correct answer. Question number 9. Which education policy introduced the concept of a 5 plus 3 plus 3 plus 4 school structure in India? Very one. It is National Education Policy. So 5P is actually 3 to 8 years. Foundation stage. It is foundation stage. Take next 3. It is up to standard 2. It is next 3 are 3 to 5. Standard 3 to 5. Okay, it is 8 to 11. It is preparatory stage. PS, preparatory stage. Next three, it is 6 to 8. Standard 6 to 8. Okay, 11 to 14 years. It is middle school stage. Middle school stage. Next one, 4, secondary stage. Right, it is 9 to 12 standard. Okay, it is secondary stage. It is secondary stage. So 4, first 5 is the foundation stage, next 3 is the preparatory, next 3 is the middle school, next one is the secondary. Okay, so National Education Policy NEP 2020 emphasized on this structure, and this structure replaced the 10 plus 2 plus 3 system. Okay, option A is the correct answer. Question number 10, related to the Mudaliar Commission 1950-53 period is important one. Mudaliar Commission focused on which level of education? Primary, secondary, higher education, vocational education. Mudaliar Commission emphasized on secondary education. Okay, Dr. Lakshman Swamy Mudaliar. Dr. Lakshman Swamy Mudaliar, he was the Vice Chancellor of Madras University. Okay, he emphasized on secondary education. He divided secondary education into two types. He bifurcated secondary education in two types. One is the junior secondary, it is 3 years. Junior secondary, 3 years, and senior secondary education. It is junior secondary education, 3 years. Senior secondary education, it is 4 years. Right? So 11 to 17 years actually. So secondary education, basically according to Mudaliar Commission, it is 11 to 17 years. 11 to 17 years, right? Secondary education. And junior secondary education, senior secondary education. Junior secondary education 3 years, first 3 years, and senior secondary education next 4 years. Okay, clear? So next one, question number 11. Education for All movement was launched by which global organization? United Nations. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, right? UNESCO, World Bank, International Labour Organization. Clear? So you see, the Education for All movement was launched by which global organization? It is UNESCO. Headquarter is in Paris, right? Headquarter is in Paris. So United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, okay, started movement Education for All. Clear? So option B is the correct answer.
Question number 12. The midday meal scheme was launched in India to improve which aspect of education? Teacher training, school infrastructure, nutritional support for students, digital learning. It is nutritional support for students. Nutritional support for students. Clear? So option C is the correct answer. The midday meal scheme, actually it was launched in August 15, 1995. It was launched. Okay, at that time, Prime Minister was P.V. Narasimha Rao. Okay, initially National Program of Nutritional Support to Primary Education. Okay, National Program of Nutritional Support to Primary Education. Then in 2001, expanded to all states. Remember, 2001 expanded to all states. 2008-9 upper primary schools. Okay, now in NEP, midday meal scheme also, it must be availed by secondary education also up to it means 14 to 18 years also. Now first one, it was launched in 1995. 2001 it extended to all states. 2008-9 upper primary schools up to standard 8. But now NEP it means already declared that midday meal scheme will continue up to standard 12. Okay, and another information I want to give to you. It is PM Poshan 2021. It is PM Poshan. Okay, PM Poshan. Okay, this program in 2021 launched by the government, right? So in PM Poshan also basically nutritional support to the students. And ratio states actually central government 60 and state governments 40, but in northeast actually ratio 90:10. Okay, and in union territories 100% actually financial support by the government. Clear? So this thing you remember. So it is 2021 PM Poshan Shakti Nirman. Okay, it was launched, and 60% normally 60% central government and 40% support by the state government, but in northeast 90:10. 90% support by the central government, 10% by states, but in union territories UT 100% financial support by the 100% financial support by the it means central government. Clear? So this thing just you remember. So option C is the correct answer. Question number 13. Question number 13, the National Knowledge Commission 2005-9. This period also you remember. The National Knowledge Commission 2005-9 was set up to focus on which area? Universal primary education, enhancing research and innovation in higher education, strengthening vocational education, reducing dropout rates, right? Reducing dropout rates in secondary education. National Knowledge Commission emphasized on enhancing research and innovation in higher education. Okay, right? This commission was set up. Okay, and the period of this commission was 2005-9 and mainly focused on research and innovation in higher education. Option B is the correct answer. Question number 14. The Right to Education Act 2009 applies to children of which age group? It is very easy one. It is 6 to 14 years. And you remember elementary education. Okay, elementary education. It means Right to Education Act 2009. Okay, it is applicable 6 to 14 year child. So option B is the correct answer. Question number 15. It is what is the main purpose of the Samagra Shiksha Abhiyan introduced in 2018? मैं बोला था समग्र शिक्षा अभियान 3 schemes actually merged with समग्र शिक्षा अभियान. It is सर्व शिक्षा अभियान plus राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान plus teacher education. Okay, 3 schemes merged, and it is समग्र शिक्षा अभियान, right? So main purpose is
to integrate school education from preschool to senior secondary level. Remember, Samagra Shiksha Abhiyan main purpose is primary, okay, to preschool to senior secondary up to standard 12, preschool to senior secondary, okay, and 3 schemes merged with Sarva Shiksha Abhiyan, and it was introduced in 2018. Clear? Question number 15, option B is the correct answer. Question number 16, the Niti Aayog in India plays a key role in shaping policies related to only higher education, only vocational training, school and higher education policies, only teacher recruitment. Okay, Niti Aayog actually shaping policies related to option C, school and higher education policies. School and higher education policies. Right? Option C is the correct answer. Question number 17. Question number 17, the Operation Blackboard initiative was launched to. You know that in 1987, this initiative actually initiated by the government. Just follow the policy of National Policy on Education 1986. Okay. And main thing actually Operation Blackboard, you remember, aiming to enhance the quality of primary education. Okay, aiming to enhance the quality of primary education by providing essential facilities to all primary schools across the country. Right? So, यहाँ पर जो आंसर है ना ऑप्शन बी, improve basic school infrastructure and teaching facilities. Okay, and just I want to give some fact. This initiative was launched in 1987, aiming to enhance the quality of primary education by providing essential facilities to all primary schools across country. And in 1993-94, okay, district primary education program, you know, DPP, expanded to upper primary schools. Expanded Blackboard of Operation Blackboard program was extended to upper primary schools. Okay, third teacher and a third classroom, okay, where student enrollment exceeds 100. When student enrollment exceeds 100, student enrollment SC greater than 100, third teacher and third classroom. Okay, third teacher must be recruited and third classroom must be constructed if the student enrollment greater than 100. Okay, so Operation Blackboard mainly emphasize on primary education, infrastructural facilities, okay, in primary schools, quality education in primary schools, teachers training, okay, so that good resource actually guide the students, right? So option B is the correct answer. Then question number 18, which education commission in India first recommended setting up the University Grants Commission? So university, already I told, University Grants Commission, which education commission in India first recommended? You know that 1948-49 Radhakrishnan Commission. Radhakrishnan Commission recommended University Grants Commission, and UGC was established in 1956. Okay. So basically Radhakrishnan Commission emphasized on higher education. So just some fact about the Radhakrishnan Commission. Emphasized on UGC, University Grant Commission, research and quality teaching in higher education. Basically research and quality teaching in universities. Promote professional education in universities. Emphasized on female education in universities. Okay, and also it means gave suggestion for rural universities. Okay, and also emphasized on moral and spiritual training. Right? So some fact it means I have given. So option B is the correct answer. Right? So next question. Question number 19. Question number 19. The National Education Policy 2020 emphasizes which of the following changes in school education? किस तरीके का changes होना चाहिए school education में? Okay, according to the NEP 2020, rote learning, emphasis on critical thinking and conceptual understanding, reducing education duration, increasing weightage for final exams. Option B, emphasis on critical thinking and conceptual understanding. Right? Option B is the correct answer. Right?
Question number 20. What is the primary focus of new education policy 2020 regarding language in schools? Language के ऊपर क्या emphasize किया है NEP? Teaching only in English, emphasizing mother tongue or regional language as a medium of instruction in early education, removing Hindi and Sanskrit from the curriculum, making all subjects bilingual. Option B. Okay, early education emphasized on mother tongue. Up to standard 5, the teachers must teach the students, okay, in mother tongue, in regional language. Then also up to 5. Clear? Up to standard 5. Then next one 5 to 8 also. From standard, it means 6, 7, 8 also. More emphasis should be given on regional language. Okay. So option B is the correct answer. Question number 21. About the Hunter Commission 1882. Year also asking. Hunter Commission 1882 was primarily concerned with which level of education in India? Clear? So it is primary, higher, vocational, technical. Actually, Hunter Commission during the British period, right? And this commission was set up in 1882, emphasized on primary education. Okay, in British period also, this commission was called Indian Education Commission. Okay, Indian Education Commission during British period, you remember, and recommended using vernacular language, emphasized on vernacular language. Okay, vernacular language. ये क्वेश्चन ऑल्सो इसके ऊपर आ सकता है. तो ये जो एम्फासाइज किया था वर्नाकुलर लैंग्वेज में, एक्चुअली ये मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली इन प्राइमरी एजुकेशन टू मेक एजुकेशन मोर accessible. Okay, and curriculum development, local control, okay, over the schools. The local actually involvement should be there, community involvement should be there, and vernacular instruction, what type of language basically using by the particular local area, in that language only taught to the students. Practical curriculum. But the two thing is very important. One, emphasized on primary education. Another one, instruction should be in vernacular language. And also during British period, it was called Indian Education Commission. Right? तो कुछ मैं फैक्ट दे दिया आपको. चलो, क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following schemes was launched to promote higher education accessibility for socially disadvantaged students in India? तो हायर एजुकेशन कैसे असेसिबल होगा जो सोशियली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स है? ओके, सो सोशियली डिसएडवांटेज, सपोज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओके, वो उनको कैसे हायर एजुकेशन असेसिबल होगा? तो कौन सा स्कीम है? इट इज ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा. ओके, एंड इट वाज एक्चुअली implemented by Ministry of Education in 2013. Okay, and June also it was one thing we remember, it is option B, Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan. It was implemented by the government in 2013, okay, by Ministry of Education, and in June 2023, okay, it is प्रधानमंत्री, ओके, उच्चतर शिक्षा अभियान. नेम इज चेंज्ड, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, June 2023. द सेम नेम ओनली रिप्लेस्ड. ओके, तो एम्फासाइज ऑन एक्चुअली रूसा, एम्फासाइज्ड ऑन accessible actually higher education, equity in higher education, and excellence. Basically three things: assess, equity, and excellence in state higher educational institutions. But this scheme provide more benefit to the socially disadvantaged students. Okay, question number 23. Which of the following is the flagship program aimed at improving the quality of teacher education in India? Flagship program aimed at improving the quality of teacher education. So option B is the correct answer. Okay, it is National Mission on Teachers and Teaching. Okay, कैसे टीचर एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव होगा?
तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, एक्चुअली थ्रू दिस मिशन, ओके, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, ओके, इम्प्रूव्ड इन इंडिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 24. The Teach for India initiative focuses on providing midday meals to school education, recruiting teachers for rural and underprivileged schools, offering scholarships for international education, creating digital classrooms. So you know it is option B, recruiting teachers for rural and underprivileged schools. The Teach for India initiative. Actually, this initiative was taken in 2008 बाय साहिन मिस्त्री. यू रिमेंबर नेम, बाय साहिन मिस्त्री. और इसमें क्या किया गया कि जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं है, जहां पर लैब, प्लेग्राउंड, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, ओके, वही अंडर प्रिविलेज स्कूल्स. सो वहां पर टीचर्स को रिक्रूट किया जाए, रिक्रूटिंग टीचर्स, ओके, फॉर रूरल एंड अंडर प्रिविलेज स्कूल्स, रूरल स्कूल्स एंड अंडर प्रिविलेज स्कूल्स, ओके, जहां पर ध्यान दिया जाए कि कैसे टीचर्स को रिक्रूटमेंट दे दिया जाए और वहां पर जो बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षा मिले. ठीक है, तो दिस इनिशिएटिव वाज इनिशिएटेड इन 2008. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 25. अगेन एक एनईपी के ऊपर क्वेश्चन है. द एनईपी 2020 इंट्रोड्यूसेस न्यू असेसमेंट सिस्टम रिप्लेसिंग बोर्ड एग्जाम्स विथ ओनली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स, मॉड्यूलर एंड सेमिस्टर बेस्ड असेसमेंट्स, ओपन बुक टेस्ट फॉर ऑल ग्रेड्स, एलिमिनेटिंग ऑल एग्जाम्स. एक्चुअली जो एनईपी 2020 है वो ये एम्फासाइज कर रहा है कि मॉड्यूलर एंड सेमिस्टर बेस्ड असेसमेंट. मॉड्यूलर मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल टेस्ट होगा. और अभी भी ये भी एम्फासाइज किया है कि मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स ड्यूरिंग ए ईयर, मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स. नाउ एक सिंगल एट द एंड ऑफ द सेशन सिंगल बोर्ड एग्जाम, बट नाउ मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स. एक्चुअली प्रपोजल गिवन बाय एनईपी 2020. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 26. Which of the following commissions was set up by the government of India to suggest reforms in higher education? ये बहुत easy है. To suggest reforms in higher education, it is very राधा कृष्णन कमीशन. उसके ऊपर मैं बोल चुका हूँ. हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इट इज ऑल्सो राधा कृष्णन कमीशन, ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ना. So according to the recommendation of this commission, UGC established ना. So option C is the correct answer. The next one, the Right to Education Act 2009 mandates private schools to reserve what percentage of seats for economically weaker sections. RT 2009 क्या बोला है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना परसेंटेज का रिजर्वेशन होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए. तो इट इज 25%. इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू रिमेंबर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 28. यहां पर टी इज मिसिंग. द सर्व शिक्षा अभियान वाज मर्ज्ड अंडर व्हिच लार्जर स्कीम इन 2018. मैं बोला था कि सर्व शिक्षा अभियान प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन, ये सब मिलकर क्या हो गया, समग्र शिक्षा अभियान. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 2018, यू रिमेंबर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29. Which initiative was launched by the Indian government to provide free digital learning content to students? Free digital learning content, okay, to students. National Knowledge Commission, Diksha, Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, Nishtha, Digital Literacy Mission. Actually option B, Diksha, Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. ओके, इसके ऊपर दीक्षा के ऊपर बोलता हूँ September 5, 2017. ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वाज दीक्षा वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू. ओके, एंड दिस एक्चुअली इनिशिएटिव was functioning under NCERT. It is a digital platform for school education. Digital platform, it means digital educational resources available in 22 languages. हमारा शेड्यूल 8 में क्लियरली मेंशन है 22 लैंग्वेजेस में एजुकेशनल रिसोर्सेस अवेलेबल है दीक्षा प्लेटफॉर्म में. ठीक है, और एक है
कि इसमें बहुत कुछ टॉपिक के ऊपर टीचर्स को ट्रेनिंग मिलता है। जैसे साइड में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, ओके, डिजिटल लिटरेसी है, ओके, स्किल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसके ऊपर दीक्षा पोर्टल में ऑनलाइन में ट्रेनिंग मिलता है टीचर्स को। और यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस में, ठीक है, डिजिटल जो इट मीन्स रिसोर्सेस है, एजुकेशनल रिसोर्सेस स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। एंड इट वाज फंक्शनिंग अंडर एनसीईआरटी एंड September 5, 2017 इट वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 को चलेंगे। अगेन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है, मैं बोल चुका हूं उसके ऊपर। द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इंप्रूव व्हिच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन? इट इज ऑप्शन बी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर ट्रेनिंग इन प्राइमरी स्कूल्स। इनका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर एम्फसाइज किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचर ट्रेनिंग हो, ओके, एंड बेसिकली अदर फैसिलिटीज हो, ओके। So 1987 Operation Blackboard was launched by the government according to the National Policy on Education 1986. Clear? So option B is the correct answer. Question number 31. The Shiksha Mitra scheme in India was introduced to. Shiksha Mitra scheme provide midday meals, recruit para teachers for primary schools, offer free online courses, distribute free textbooks. Shiksha Mitra scheme actually it is in Uttar Pradesh. Actually, it was launched by Uttar Pradesh government. Okay, Uttar Pradesh government actually launched this program and contractual para teachers to support educational activities. Okay, the schools recruit para teachers on contractual basis. Okay, in primary schools. Are we clear understood or not? And it was introduced by the Uttar Pradesh government. So Uttar Pradesh government emphasized, okay, that para teachers should be recruited in primary schools. Option B is the correct answer. Question number 32. Again NEP 2020 के ऊपर क्वेश्चन है. Which of the following is a key feature of the National Education Policy 2020? It is reducing focus on extracurricular activities, emphasis on multidisciplinary education and flexibility, introducing mandatory Sanskrit learning, removing vocational education. So option B is the correct answer. Emphasis on multidisciplinary education and flexibility. Multidisciplinary education उसमें जो भी मेन सब्जेक्ट है उसमें आर्ट, म्यूजिक, sports, skill subject. Flexibility means the according to the choice actually the students they choose the subject, so there is no segregation of streams like arts, commerce and science, no. Okay, option B is the correct answer. Next one, question number 33. The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan was launched to improve which level of education? So primary, secondary, higher education or vocational education. So obviously madhyamik means secondary education. Option B is the correct answer. And now this scheme merged with Samagra Shiksha Abhiyan in 2018. Clear? This scheme is merged with Samagra Shiksha Abhiyan. Actually इसके ऊपर मैं बोल देता हूं कि March 2009, okay, this Abhiyan was launched and it aimed to increase the enrollment rate at the secondary level from 52.26% to 75% within 5 years. Okay, इसे एक टारगेट था, तो उस समय जो एनरोलमेंट रेट 52.26% था हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, वो इंक्रीज होकर कैसे 75% हो जाएगा, तो ये एम्फसाइज किया था. और दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2009 बट इन 2018 इट मर्ज्ड विद समग्र शिक्षा अभियान. Question number 34. Question number 34. Question is given. Which commission recommended the establishments of IITs? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ये सरकार कमिटी है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सरकार कमिटी recommended the establishment of Indian Institute of Technology. Option B is the correct answer. Question number 35. The National Skill Development Mission was launched to improve primary education, promote vocational training and skill development, providing scholarships for higher studies, establish new universities.
नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, सो स्किल का बात आ जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, which organization is responsible for accreditation of higher education institutes in India? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो आंसर है नाक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नाक एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डिटेल्स चेक करता है, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसका स्टडी एटमॉस्फेयर हो, चाहे उसका जैसे टीचर स्टूडेंट रेशियो हो, ठीक है, और उसका जो स्किल एजुकेशन है, ये सब चेक करता है। ठीक है, नाक एक्चुअली उसके ऊपर बोल देता हूं, नाक के ऊपर एक्चुअली 1994, okay, this organization was established by UGC, okay, to monitor the higher education institutions, right? So headquarter is in Bengaluru, it means Bangalore, Karnataka। headquarter के ऊपर पूछ सकता है, headquarter is in Bangalore, Karnataka, okay, option C is the correct answer। Next one, question number 37, what is the primary aim of the National Digital Library of India? Okay, question number 37, National Digital Library of India, NDLI, to replace physical books with digital copies, to provide free online access to academic resources, to promote traditional library reading, to offer free internet access in rural areas. Actually, option B is the correct answer, to provide free online access to academic resources, okay। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वो मेनली एम है कैसे जो एकेडमिक रिसोर्सेस मिलेगा फ्रीली मिलेगा, ओके, थ्रू ऑनलाइन, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द उन्नत भारत अभियान एम्स टू कनेक्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विथ, ओके, उन्नत भारत अभियान मीन्स बेसिकली international universities, rural communities for social and economic development, private industries, urban digital education projects। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज इट इज रूरल कम्युनिटीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्नत भारत अभियान एम्स टू कनेक्ट हायर, बेसिकली कनेक्ट विथ, इसको भी रिमेंबर करना है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके, और एम्फसाइज ऑन रूरल कम्युनिटीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हायर एजुकेशन के वजह से, ओके, रूरल कम्युनिटीज में सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके, क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो डेफिनेटली कौशल का बात आता है तो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द कोठारी कमीशन 1964 to 66 recommended allocating what percentage of GDP to education? जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए? कोठारी कमीशन 6%। ऑल्सो कोठारी कमीशन रिकमेंड किया था, मगर उतना जीडीपी का 6% एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं हुआ एजुकेशन के ऊपर। अभी एनईपी 2020 भी सेम बोला है कि जीडीपी का 6% एक्चुअली इन्वेस्ट होगा एजुकेशन के ऊपर। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SCQI was introduced to rank private schools based on facilities, evaluate school education performance across Indian states, fund international exchange programs, reduce student teacher ratios in rural areas, evaluate school education performance across Indian states। जो स्कूल एजुकेशन जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट किया जाएगा इन ऑल स्टेट्स, ओके।
तो इसलिए ये जो इंडेक्स जो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को ओके इंट्रोड्यूस किया गया, जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस सभी स्टेट्स में एजुकेशनल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, द मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? ओके, द मिड डे मील स्कीम मैं बोल चुका हूं 1995 में आया था। ठीक है, तो was introduced under which constitutional provision? इसमें आर्टिकल 21A, आप देखिए आर्टिकल 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट इन कौन सा ईयर में? इन 2002 इसमें ये आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, और इसमें जो एजुकेशन होगा एक फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, और 6 to 14 ईयर चाइल्ड को ओके मिड डे मील स्कीम में इन्वॉल्व किया गया, उनको एक न्यूट्रिशनल मील मिलेगा। तो कोई भी चाइल्ड वो एम्प्टी में क्लासरूम में नहीं बैठेगा, ओके, और माल न्यूट्रिशन भी कम होगा, और वो भी पढ़ाई के ऊपर बेसिकली दे कंसंट्रेट ऑन बेसिकली लर्निंग। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अभी जो एनईपी बोला है कि मिड डे मील स्कीम अप टू स्टैंडर्ड 12 तक है। ठीक है, और स्टैंडर्ड 12 तक लागू होगा। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43, द मेन गोल ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन इज टू encourage scientific research in primary schools, promote a culture of entrepreneurship and innovation among students, train teachers in AI technology, artificial intelligence technology, provide internet access to rural schools. So option B is the correct answer. Promote a culture of entrepreneurship and innovation among students. Okay, option B is the correct answer. Question number 44, which initiative was launched in India to provide low cost books and reading materials for students? Okay, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इंडिया में जो स्टूडेंट्स को लो कॉस्ट में बुक्स अवेलेबल होगा, रीडिंग मटेरियल्स भी अवेलेबल होगा? तो ऑप्शन डी, नेशनल बुक ट्रस्ट इनिशिएटिव। इसी इनिशिएटिव में स्टूडेंट्स को लो कॉस्ट में बुक्स अवेलेबल होगा, ऑल्सो रीडिंग मटेरियल्स ऑल्सो अवेलेबल होगा लो कॉस्ट में। सो दिस इनिशिएटिव वाज कॉल्ड नेशनल बुक ट्रस्ट इनिशिएटिव। ऑप्शन डी correct answer. Question number 45, the Global Partnership for Education GPE is an international initiative that aims to fund higher education research projects, improve primary and secondary education in developing countries, promote exchange programs between universities, create a common global education syllabus. Option B, improve primary and secondary education in developing countries. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, साला दर्पण इनिशिएटिव इज एम्ड एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग फ्री लैपटॉप्स टू स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग टीचर्स इन रूरल स्कूल्स, रिफॉर्मिंग प्राइवेट स्कूल एजुकेशन। साला दर्पण इनिशिएटिव का मेन एम है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस। थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा स्कूल का परफॉर्मेंस और कैसे स्कूल ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 47, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द विद्यांजलि प्रोग्राम इज, ठीक है, तो विद्यांजलि प्रोग्राम के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूं। विद्यांजलि प्रोग्राम एक्चुअली दिस प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 7th September 2021, ठीक है, अंडर समग्र शिक्षा अभियान इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद्यांजलि प्रोग्राम। एंड विद्यांजलि का एक पोर्टल है, उसमें सभी स्कूल को रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करोगे तो उसमें कुछ वॉलंटियर्स है, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, वो हेल्प करेंगे। कैसे, किस तरीके से हेल्प करेंगे? एक्चुअली वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विद्यांजलि। आप स्कूल जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो होने के बाद क्या है, कम्युनिटी वॉलंटियर्स लाइक अलुमनी, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर्स, कोई एजुकेशनिस्ट, वो हेल्प करेंगे। कैसे? कैरियर गाइडेंस देंगे, कैसे टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से वो गाइड करेंगे। तो वहां पर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये सब जो प्रोफेशनल पीपल है दे कम फॉरवर्ड, ओके, टू एक्सटेंड हेल्प टू द स्टूडेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वो नेक्स्ट वन रिसोर्सेस। जैसे यहां पर जो ऑप्शन मैं बोल देता हूं, यहां पर encouraging community participation in school development, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि
आप जब स्कूल जब ऑनलाइन पोर्टल में विद्यांजलि प्रोग्राम में रजिस्टर कर देगा, तब एक फास्ट चीज आएगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, चाहे रिटायर्ड प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, अलुमनी, ओके, दे कम फॉरवर्ड एंड एक्सटेंड हेल्प टू द स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड वन, रिसोर्सेस, चाहे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, वो भी आ जाएंगे, वो रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, और कुछ कम्युनिटी मेंबर्स दे प्ले द मेंटरशिप रोल, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो विद्यांजलि एक विद्यांजलि 1 है, विद्यांजलि 2 है, एक है विद्यांजलि 1.0। इसमें वॉलंटियर बेस्ड सपोर्ट, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन में, वो आ जाएंगे कम्युनिटी पीपल, जैसे मैं बताया आपको, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, अलुमनी, एजुकेशनिस्ट, ओके, एंड अदर सम इंटेलेक्चुअल पीपल, दे कम फॉरवर्ड। वो आकर स्कूल में क्या करेंगे, कुछ कैरियर गाइडेंस देंगे, ठीक है, मेंटरशिप रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और एक विद्यांजलि 2.0 है, जिसमें रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे एनजीओ, कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2021। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड 12 स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं ना, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ओके, उसको कौन सपोर्ट करेगा, वही कम्युनिटी सपोर्ट करेगा, मगर विद्यांजलि प्रोग्राम में ऑनलाइन पोर्टल में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 48, अंडर एनईपी 2020 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज टारगेटेड टू बी, ये बहुत इजी है, 50% बाय 2035। जब एनईपी 2020 में लागू हुआ, तब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में ओनली 26% था। तो अभी टारगेट है कि बाय 2035 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शुड बी 50%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एम्स टू, NETF aims to develop AI based learning systems, artificial intelligence based learning system, provide technology related policy guidance in education, establish computer labs in every school, replace traditional teaching methods with digital tools. Option B is the correct answer. Provide technology related policy guidance in education. ओके, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का मेन एम है कैसे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉलिसी है उसमें वो कैसे गाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉलिसी गाइडेंस इन एजुकेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच स्कीम। ये जो बेसिकली ये जो स्कीम आ गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल, ये सर्व शिक्षा अभियान का एक पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सर्व शिक्षा अभियान अभी मर्ज हो चुका है, ओके, समग्र शिक्षा अभियान में। ठीक है, 50% क्वेश्चन हो गया, ये मेरा 100 क्वेश्चन मैराथन है। चलो क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच इंडियन पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। ये जो कॉमन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम है, कोठारी कमीशन। कॉमन स्कूल क्या है, कॉमन करिकुलम रहेगा, सभी स्कूल्स में कॉमन करिकुलम सिस्टम रहेगा। ठीक है, वो कोठारी कमीशन बोला था। यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल एजुकेशन, ओके, यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल एजुकेशन मींस स्कूल एजुकेशन में कॉमन करिकुलम रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में अंडर एनईपी 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम्स टू सेट अप हाउ मेनी न्यू मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय 2040। ये बाय 2040 को रिमेंबर करना है, बाय 1000 मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन। ओके, जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होगा, वहां पर जनरल एजुकेशन रहेगा, ऑल टाइप्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन रहेगा। आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, वहां पर एग्रीकल्चर रहेगा, वहां पर बीटेक रहेगा, वहां पर बी फार्मा रहेगा, वहां पर मेडिकल एजुकेशन रहेगा, वहां पर म्यूजिक रहेगा, वहां पर स्पोर्ट्स रहेगा, वहां पर आर्ट एजुकेशन रहेगा, एवरीथिंग रहेगा। सेपरेट यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, जैसे अभी सेपरेट है, बीटेक के लिए अलग है, कि सपोज आपका लॉ के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, ये नहीं रहेगा, सभी वही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहेगा। तो ऐसे 1000 मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा, ये एनईपी 2020 एम्फसाइज किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच इंडियन एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी
ओके, ओपन यूनिवर्सिटी का बात आएगा, हम जाएंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी एनपी 1986 रिप्लेस्ड बाय एनईपी 2020, ठीक है। इसका रिवाइज हुआ था 1992 में। ओके, रामामूर्ति कमेटी के द्वारा इसको रिवाइज किया गया था 1992 में, रामामूर्ति कमेटी, याद रखना है। और ये रिप्लेस हो गया बाय एनईपी 2020। यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 को चलेंगे। द सगुन पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू, ये जो सगुन पोर्टल क्यों लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट? मॉनिटर एंड इंप्रूव स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स, प्रमोट रूरल एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीन्स, कंडक्ट ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग। नो, ये मॉनिटर एंड इंप्रूव स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच कमीशन सजेस्टेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर स्कूल्स इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 55, अगेन ये जो कमीशन का बात आता है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंपोर्टेंस दिया, कोठारी कमीशन, वही 1964-66। ओके, ये कोठारी कमीशन, कॉमन स्कूल, यूनिफॉर्म करिकुलम, कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कोठारी कमीशन कौन सा लाया था? 10+2+3। ओके, सब कोठारी कमीशन ओके का रिकमेंडेशन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान वाज लॉन्च टू प्रमोट, ये ऑप्शन ए, साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और ए वाज लॉन्च टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच एक्ट एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज इन इंडिया? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कौन सा ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज इन इंडिया, ये एक्ट के ऊपर मैं अभी एक वीडियो डाला था, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ओके, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर इंपोर्टेंस किया गया, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसेबल चाइल्ड एंड नॉर्मल चाइल्ड। ओके, ऑल वन सिट टुगेदर एंड लर्न। ओके, all facilities should be given to disabled children so that they do not feel that it means they do not play the role as normal child. Okay, also they can compete with the normal child, they sit with the normal child and learn. Option B is the correct answer. Question number 58, which Indian body is responsible for developing school curriculum and textbooks? ये तो बहुत इजी है, ये NCERT, जो स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स बोर्ड जो डेवलप करता है वो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ऑप्शन सी। एनसीईआरटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1961, क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 59, भाषा संगम इनिशिएटिव के ऊपर आ गया, भाषा संगम इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस टू। ओके, क्वेश्चन 59, एक भारत श्रेष्ठ भारत में भाषा संगम को एम्फसाइज किया गया है कि नहीं? तो मेन भाषा संगम का बात आता है तो मल्टी लिंग्वलिज्म, प्रमोट मल्टी लिंग्वलिज्म अमंग स्टूडेंट्स। ओके, मल्टी लैंग्वेज के ऊपर एम्फसाइज किया भाषा संगम। आप देखिए नवंबर, इसके ऊपर थोड़ा बता देता हूं, नवंबर 22, 2018 अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। ओके, सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड फोस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी के ऊपर एम्फसाइज किया गया एंड फोस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो प्रमोट ओके मल्टीपल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया फॉर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देयर इज नो लिमिट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न ओके लैंग्वेज, ओके दे मस्ट रेडी टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस, एंड ये जो प्लेटफॉर्म है भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत से आ गया, ठीक है, नवंबर 22 ईयर को याद रखिए। तो ये एम्फसाइज क्या किया? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड फॉस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 को चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन वाज लॉन्च टू इंप्रूव, देखिए इसका फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा निपुण का, तब आंसर मिल जाएगा। निपुण है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगेन और एक बार बता रहा हूं, निपुण का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जो लॉन्च हुआ
ये 5 जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी उसको लॉन्च किया। और इसमें मेनली स्टैंडर्ड 1 to 3 FLN जो है फंडामेंटल, ओके, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN को एम्फासाइज किया गया, ठीक है। FLN को एम्फासाइज किया गया, स्टैंडर्ड 1 to 3 FLN फंडामेंटल, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कैसे? फंडामेंटल जो है बेसिक रीडिंग, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक वोकाबुलरी, बेसिक कंप्यूटेशन स्किल, ओके, दे मस्ट बी लर्न्ड बाय स्टैंडर्ड 1 to 3। अभी क्लियर अंडरस्टूड? एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय 2025। तो निपुण भारत का वो है ईयर 5 जुलाई 2021, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो अगेन FLN के ऊपर ये एम्फसाइज किया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। इसको इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड 1 to 3, ओके, इट कैन बी अचीव्ड बाय स्टैंडर्ड 1 to 3, ठीक है। और ये जो FLN यहां पर जो निपुण भारत ने एम्फसाइज किया, FLN कैन बी अचीव्ड बाय 2026-27। निपुण भारत मिशन ने इसको टारगेट किया है, FLN कैन बी अचीव्ड बाय 2026-27। All children from standard 1 to 3 they must know about the basic reading skills, writing skills, basic computation skills by 2026-27। मगर NEP ने एम्फसाइज किया है टारगेट बाय 2025 ना, मगर निपुण भारत मिशन का टारगेट है 2026-27 FLN टारगेट। चलो क्वेश्चन नंबर एक NEP के ऊपर क्वेश्चन है। अंडर NEP 2020 स्टूडेंट्स कैन नाउ चूज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स अंडर व्हिच इनिशिएटिव? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। देखिए आप अभी सपोज कॉलेज में कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सपोज पढ़ाई बंद कर दिया, तो बंद कर दिया, सपोज एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि आपका ग्रेजुएशन जैसे 3 ईयर से आप 1 ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर यू लेफ्ट द एजुकेशन, मगर फिर फ्यूचर में आप डिसाइड किया फिर आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको क्या कंटिन्यू करना है? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंटिन्यू करना है, क्योंकि 1 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो आपका क्रेडिट आकार में रहेगा, वो लैप्स नहीं होगा। अभी क्या है, आप सपोज 3 इयर्स ग्रेजुएशन है, 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिया, तो फिर फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि फिर मैं ग्रेजुएशन करूंगा, तो फिर इनिशियली करना है, ये 1 ईयर लैप्स हो जाएगा। मगर अभी NEP बोला है ये लैप्स नहीं होगा, ये आपका क्रेडिट के आकार में रहेगा फर्स्ट ईयर, ठीक है, क्रेडिट के आकार में रहेगा। यदि फ्यूचर में सपोज अगेन यू डिसाइड दैट अगेन यू वांट टू कंटिन्यू ग्रेजुएशन, देन यू स्टार्ट फ्रॉम ओके सेकंड ईयर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो और वो क्रेडिट की तरह है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको ABC याद रखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका ऐसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, the school innovation ambassador training program is designed for, school innovation ambassador training program, ये ऑप्शन A is the correct answer, training teachers in innovation and entrepreneurship, okay, option A is the correct answer। question number 63, the one nation one digital platform initiative is linked with Diksha Swayam, NPTEL and NIOS, so it is Diksha, one nation one digital platform। 2017 में दीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया, September 5, 2017 बाय ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, एंड इट इज ऑपरेटिंग बाय द NCERT, ओके। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मटेरियल्स मिल रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एंड टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन A, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ओके, इसको याद रखना है उसका फुल फॉर्म। चलो 64, समग्र शिक्षा अभियान मर्ज्ड विथ, मैं बता चुका हूं बहुत बार, ये ऑप्शन A, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, तीनों मिलकर समग्र शिक्षा अभियान, ओके, ये जो अभियान आया 2018 में, ठीक है, ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। 65 को चलेंगे, एक NEP के ऊपर क्वेश्चन है, अंडर NEP 2020 ए न्यू रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन
is proposed. What is the name? ये जो न्यू रेगुलेटरी बॉडी प्रपोज किया गया हायर एजुकेशन में, उसका नाम क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये न्यू रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 66, द जीवन कौशल प्रोग्राम। तो जीवन कौशल प्रोग्राम फोकसेस ऑन लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके, लाइफ स्किल का बात आ जाता है जीवन कौशल, तो आपको थोड़ा सोचना है। 66 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस व्हिच मेजर रिफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन। क्या मेजर रिफॉर्म आना चाहिए हायर एजुकेशन में? एनईपी एम्फसाइज किया है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री कोर्सेज। तो इसीलिए तो एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। ओके, एग्जिट करने के बाद आप फिर कंटिन्यू करना चाहते हो, वो जितना कोर्स आप कंप्लीट किया है वो रहेगा क्रेडिट के आकार में। मैं अभी एक एग्जांपल दिया था, आप फिर वहीं से आप कंटिन्यू करना है, मगर अभी वो सिस्टम नहीं था। अभी सपोज आप ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, 6 मंथ्स कंप्लीट किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो वो आप फिर फ्यूचर में यू वांट टू स्टार्ट अगेन ग्रेजुएशन, बट फिर इनिशियली आपको स्टार्ट करना था, मगर अभी वो नहीं होगा। आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हो, मगर आप जितना कोर्स कंप्लीट किया है वो उतना क्रेडिट के आकार में रहेगा। इसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 को चलेंगे। अंडर द नेशनल लिटरेसी मिशन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट लिटरेसी फॉर ऑल एडल्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द नेशनल लिटरेसी मिशन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट लिटरेसी फॉर ऑल एडल्ट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, एनसीईआरटी वाज सेट अप इन व्हिच ईयर। मैं उसको बता चुका हूं आपको, 1961। National Council of Educational Research and Training was set up in which year? 1961. Option A is the correct answer. Next one, the Apprentice Act in India was introduced in which year? Same 1961. Apprentice Act. Option B is the correct answer. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 71, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कमीशन सेटअप किया गया, उसके लिए एक्ट के हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट वाज एनैक्टेड इन व्हिच ईयर। ये आपका जो एनैक्ट हुआ था वो 2004 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक एक्ट आ गया जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उनका एक कमीशन रहेगा, नेशनल कमीशन। ओके, तो दिस एक्ट वाज एनैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2004। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 72, द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एनबीए वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट। द एनबीए वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? AICTE एक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, AICTE एक्ट। ओके, ये एक्रेडिटेशन जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन वो एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, जो NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल में NSS है। ओके, नेशनल सोशल स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, सॉरी नेशनल सर्विस स्कीम was launched by the government of India under which ministry? Ministry of Youth Affairs and Sports. Option B is the correct answer. Question number 74, which of the following acts primarily focuses on the improvement of teacher education in India? टीचर एजुकेशन के ऊपर ओके प्राइमरी फोकस रहेगा, तो 74 है NCT एक्ट। ओके, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। ये एक्ट को रिमेंबर करना है। ओके, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, ये ज्यादातर फोकस किया कैसे टीचर एजुकेशन को इंप्रूव किया जाएगा। द NCT एक्ट 1993, ये और को रिमेंबर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन एक एक्ट हुआ। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक्ट वाज एनैक्टेड इन व्हिच ईयर? इट इज 1999, 1999। ठीक है, वो शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट के लिए, उनका प्रमोशन के लिए, उनका एनहांसमेंट के लिए एक कमीशन सेटअप होगा, उसके लिए एक एक्ट आया। तो जो एक्ट आया था वो इनैक्टेड हुआ था 1999। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलो क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग ब्यूरो वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 76 है, आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये जो नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग ब्यूरो जो एस्टेब्लिश हुआ, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, ये जो सर्व शिक्षा अभियान वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर व्हिच एक्ट? ओके, आरटी एक्ट। क्यों आरटी एक्ट है मैं बता देता हूं। सर्व शिक्षा अभियान एक्चुअली इनिशिएट हुआ 2001 में, मगर उसको लीगली एक्चुअली ये बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान किसके ऊपर एम्फसाइज किया था? एलिमेंटरी एजुकेशन, एलिमेंटरी 6 to 14 ईयर्स, मगर उसको लीगली एक्चुअली एक्सेप्ट किया गया, लीगली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो 6 to 14 ईयर चाइल्ड कंपल्सरी दे गेट एजुकेशन। तो हमारा जो 86th अमेंडमेंट आया, 86th अमेंडमेंट आया था, ओके, 2002 में, ठीक है। इस अमेंड ये एक्चुअली आपका एम्फसाइज किया था, ठीक है। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, इसमें एक आर्टिकल आया 21A, ये आर्टिकल को इंसर्ट किया गया और डिक्लेयर किया गया कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, मगर उसको सर्व शिक्षा अभियान को लीगली हम एक्सेप्ट किए आरटी एक्ट 2009 में, जिसमें कहा गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रहेगा 6 to 14 ईयर्स, और उसमें ऑल फैसिलिटीज, आपका टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, स्कूल बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी, ओके, ऑल फैसिलिटीज रहेगा, ठीक है। और टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ये सब फैसिलिटीज एम्फसाइज किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 78 को चलेंगे। एक वुड्स डिस्पैच के ऊपर है, इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मेजर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ मास एजुकेशन। एक्चुअली वुड्स डिस्पैच फर्स्ट मेजर, इसको याद रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेजर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। और जो वुड्स डिस्पैच जो ये आया था ब्रिटिश पीरियड में 1854, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 आ गया, मैकाउले मिनट्स, ये भी 1835 लेड द फाउंडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एजुकेशन, ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये जो मैकाउले मिनट्स 1835 लेड द फाउंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन दे दिया, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये एक्ट को रिमेंबर कीजिए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एस्टैब्लिश न्यू यूनिवर्सिटीज, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी, इंट्रोड्यूस टेक्निकल एजुकेशन, इंप्लीमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 इंट्रोड्यूस हुआ, वो ज्यादातर एम्फसाइज किसको किया ना, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे इंप्रूव होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 81, और एक क्वेश्चन आ गया, कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द, वो वही है इंडियन एजुकेशन कमीशन, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोठारी कमीशन जो 64-66 उस समय कोठारी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन थे, और बहुत कुछ चेंजेस आया था, 10+2+3 कॉमन स्कूल सिस्टम, और उसी को इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 82, सैडलर का बात आएगा तो बंगाल को याद कीजिए, द सैडलर कमीशन 1917, ये ईयर वाज एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामाइन, ओके, द सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन बंगाल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 83, ये हर्तोग कमिटी वाज सेट अप, ओके, हर्तोग कमिटी वाज सेट अप टू, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा, वाज सेट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द करिकुलम फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो जो ऑप्शन नहीं, ये जो है, सॉरी, इसमें जो आंसर होगा वो रिव्यू द प्रॉब्लम्स इन द स्कूलिंग सिस्टम इन इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, नॉट बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हर्तोग कमेटी आया था जब साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन कब आया था 1928 में, तो उसी समय ये कमेटी को सेटअप किया गया था अंडर ब्रिटिश पीरियड। तो इसको क्यों किया गया था ना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, मेरा बात सुनिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये एम्फसाइज किया वोकेशनल एजुकेशन, ये एम्फसाइज किया क्वालिटी एजुकेशन ओवर क्वांटिटी,
ओके, ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करने के लिए एम्फासाइज किया, ठीक है, और ज्यादातर मोर हायर एजुकेशन में मोर प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन होना चाहिए, मोर प्रैक्टिकल बेस सिलेबस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन। तो ये जो हर्तो कमेटी आया था, ये यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मगर ये एक एजुकेशनल रिफॉर्म है जो वोकेशनल एजुकेशन को एम्फासाइज किया, जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी को एम्फासाइज किया और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए बोला, और हायर एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 84 द सर्जेंट रिपोर्ट रिकमेंडेड। ये जो क्वेश्चन नंबर 84 है, जो सर्जेंट रिपोर्ट का बात आएगा, तो बेसिकली आप ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ये रिपोर्ट 1944, सर्जेंट ईयर को याद रखिए, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 85 अगेन वुड्स डिस्पैच के ऊपर आया 1854, जिसमें आपका मेन जो है वुड्स डिस्पैच एडवोकेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन व्हिच 3 सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये जो 1854 में वुड्स डिस्पैच में बेसिकली आप कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ओके, ये यहां पर ही यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश होगा, ओके, ये एम्फासाइज किया था 1854 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। क्वेश्चन नंबर 86 एजुकेशन कमीशन, अगेन वही कोठारी कमीशन 1964-66 recommended which key change? Introduction of vocational education in schools, establishment of a national university, a common curriculum across all educational institutions, the expansion of higher education to rural areas. कॉमन करिकुलम वही बताया था कि यूनिफॉर्म स्कूल सिस्टम, यूनिफॉर्म मीन्स कॉमन करिकुलम रहेगा, ओके, स्कूल एजुकेशन में कॉमन करिकुलम रहेगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है जो नेशनल एजुकेशन कमीशन, उसको भी कहा जाता है कोठारी कमीशन को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 87 ये बहुत इजी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 88 को चलेंगे। द रालेइग कमीशन 1902 वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहां पर आंसर ए है, एग्जामाइन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ऑप्शन ए, इसको याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हर्तोग कमेटी के ऊपर फिर पूछा, हर्तोग कमेटी 1929 was particularly concerned with education for the scheduled caste, education for women, expansion of secondary schools, the quality of education in government schools। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 89 है, उसका ऑप्शन है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एक सेंटेंस था, वोकेशनल एजुकेशन था, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी था, और एजुकेशनल रिफॉर्म था, ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करने के लिए बोला था, साइमन कमीशन टाइम में आया था, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड विद द एम ऑफ प्रमोटिंग व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर द आरटी एक्ट। ये जो एनसीपीसीआर आया था 2007 में आया था, ओके, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड एंश्योर इट्स प्रोविजंस आर अलाउड। तो मेनली एनसीपीसीआर का क्या था, कैसे आरटी एक्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसका प्रोविजंस कैसे चिल्ड्रन को मिलेगा, ठीक है, वो मेन था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट who is responsible for ensuring that children attend school। तो चिल्ड्रन एक्चुअली स्कूल अटेंड कर रहा है कि नहीं, ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स और गार्डियंस, ऑप्शन बी, ये आरटी एक्ट 2009 एक्चुअली एम्फसाइज किया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 द आरटी एक्ट मैंडेट्स दैट ए स्कूल शुड बी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम ए चाइल्ड्स होम, विद इन 3 किलोमीटर, नहीं तो हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है, आश्रम फैसिलिटी, आश्रम स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर से ज्यादा होगा हॉस्टल फैसिलिटी, तो 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल फैसिलिटी होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 अंडर द आरटी एक्ट द मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1, टीचर पीपल रेशियो 30 स्टूडेंट फॉर टीचर, ओके, 30:1। 95 व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग एट द स्कूल लेवल एज पर एनईपी 2020 क्या बोला है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स का क्या होना चाहिए,
बीड विथ ए मिनिमम 4 ईयर एजुकेशन, ऑप्शन बी। ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन 4 इयर्स होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये एनईपी 2020 एम्फसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 96, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 what is the recommended age range for early childhood care and education, ECCE, early childhood care and education, 3 to 8 years, बेसिकली फाउंडेशनल स्टेज आपको बाल बाटिका से स्टैंडर्ड 2 ना, बाल बाटिका से स्टैंडर्ड 2 फाउंडेशन स्टेज ना, जो एनईपी एम्फसाइज किया है, तो 3 to 8 years, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, which initiative under NEP 2020 aims to promote research in higher education, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, वो उसका मेन एम है कैसे रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा हायर एजुकेशन में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, which initiative under NEP 2020 focuses on इंटीग्रेटिंग वोकेशनल कोर्सेज इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, कैसे वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट किया जाएगा, कौन सा इनिशिएटिव है, ये है ऑप्शन ए, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, NVEF, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, हाउ फ्रीक्वेंटली विल टीचर्स अंडरगो परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस अंडर एनईपी 2020, जो टीचर्स का परफॉर्मेंस को कितना ड्यूरेशन के अंदर उनका टीचर्स का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, एवरी 5 years, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एवरी 5 years, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है मैराथन एमसीक्यू का, बाय व्हाट ईयर डज एनईपी 2020 एम टू अचीव ए 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में कब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव होगा, बाय 2030, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 100% चिल्ड्रेन मस्ट बी एनरोल्ड इन स्कूल एजुकेशन। तो आज ये 100 मैराथन क्वेश्चन था, मुझे लगता है बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया। प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल, so that your friends, your relatives, they can get good information, and it is very useful one for teachers and those are preparing for teaching post. So आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार।